Dear students, most welcome. Today we are with a new chapter, with a new story, The Scarecrow, written by the Satyajit Roy. It's one of the most amazing and mesmerizing story, which is in the class 12th. In this chapter, we will be discussing about what the Scarecrow is all about. I will give you the description of the Scarecrow, then I will throw the light on the main characters of the Scarecrow, and after that we will be discussing about the scene, how a scene first and the scene second, and the scene first is on the eastern side of the road and scene second is on the western side of the road. Well, dear students, I'm your host Paul sir, and in this chapter we will be throwing the light on the Scarecrow, written by the Satyajit Roy, and in this video means the part first. You are most welcome. Now look at the screen. We will be discussing and describing what is Scarecrow. You can look at the picture. It's clearly visible there. An object made to resemble a human figure set up to scare birds away from a field where crops are growing. यानी Scarecrow हम उस चीज़ को कहते हैं, जैसे आपने यहाँ पिक्चर पे देखा होगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो रिजेंबल करता है, जो हुबहू दिखता है एक ह्यूमन की तरह, उसी की तरह एक फिगर उसकी होती है, और जिसको अक्सर हम खेत खलिहानों में रखते हैं ताकि जो परिंदे हैं वो डर जाए, वो स्केयर हो जाए. और यू कैन लुक एट द सेकंड डेफिनेशन. व्हाट इज स्कैरक्रो? अ मॉडल ऑफ अ पर्सन ड्रेस्ड इन ओल्ड क्लोथ्स एंड पुट इन अ फील्ड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स टू फ्राइटन द बर्ड्स अवे. यानी एक मॉडल होता है एक इंसान का एक नमूना होता है जिसको हमने पुराने कपड़े पहनाए होते हैं, और इस नमूने को, जैसे आप पिक्चर पे देखते हो, इस नमूने को फिर हम जो है खेत खलिहानों में रखते हैं ताकि जो परिंदे हैं वो वहाँ से भाग जाए. और इससे क्या होता है कि इससे हमारे जो क्रॉप्स है वो प्रिजर्व होते हैं, वो बच जाती है. आफ्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द स्कैरक्रो इज, देन वी विल बी थ्रोइंग द लाइट ऑन द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर The Scarecrow, written by the Satyajit Roy. And the first main character is the Mirkanko Babu. Yes, you heard right, that's Mirkanko Babu. But the whole name is Mirkanko Shekhar Mukhopadhyay. Who was the Mirkanko Babu? Means Mirkanko Shekhar Mukhopadhyay. He was a famous and a popular writer of Bengal. A famous and popular writer of Bengal. And when we talk about the nature, some qualities and adjectives, I have tried to give some adjectives and qualities of the main characters. He was of a good natured, यानी मिजाजन जो है वो बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे असलूब वाला, अच्छे सलूक वाला एक इंसान था. और वो एक इंसान था नॉट सुपरस्टिशियस, यानी वो एक इंसान थे, एक ऐसे राइटर थे जो ज़्यादा भरोसा नहीं करते किसी अंधविश्वास पे, ऐसी सुनी कहानियों पे कोई विश्वास नहीं करते थे. तो यानी when we talk about Mirkanko Babu, he was a famous popular writer of Bengal, of a good natured but doesn't believe in superstitious things. And then we will talk about the second character, that is the Sudhir. Sudhir is the driver of Mirkanko Babu. Sudhir जो है ये ड्राइवर है Mirkanko Babu के, but he is a careless driver. Sudhir जो है वो एक careless driver है. क्यों है केयरलेस ड्राइवर? वो हम आगे जानेंगे स्टोरी में कि ये केयरलेस क्यों थे, लापरवाह क्यों थे, तो हम आगे जानेंगे स्टोरी में. देन द थर्ड कैरेक्टर इज द अभिराम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज द अभिराम. ही वॉज एन एक्स सर्वेंट ऑफ मिरकांको बाबूज फैमिली, यानी वो पहले नौकर का काम करते थे मिरकांको बाबूज के फैमिली के यहाँ जो कोलकाता में थी. एंड ही वर्कड फॉर 20 years देयर, यानी इसने 20 साल काम किया. जो अभिराम है इसने मिरकांको बाबू के यहाँ जो है कम से कम 20 साल तक काम किया है, और ये बड़ा लॉयल उनका था, बड़ा ट्रस्टवर्दी था उनका. मगर बिफोर 3 years ही वॉज सैक्ड फ्रॉम हिज जॉब. मगर 3 साल पहले इसको अपने काम से, अपने जॉब से निकाला गया. क्यों? क्योंकि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा. कौन सा चोरी का इल्ज़ाम? कि उसने जो है गड़ी है वो चुराई है, मिरकांको बाबू की जो वेडिंग गिफ्ट जो है, रिस्ट वॉच जो उसकी थी वो चुराई है. और उस दैट्स वाई ही वॉज सैक्ड फ्रॉम द फैमिली बिफोर 3 years. एंड द फोर्थ कैरेक्टर इज द मिरकांको बाबूज फादर. Yes, Mirkanko Babu's father. His actual name is not mentioned in this chapter, in this story. That's why we know him by only the name, the Mirkanko Babu's father. But he was a superstitious.
Why he was superstitious, that we will be discussing in the rest of the story. The witch doctor. Whom we call a witch doctor? A person who is thought to have special powers to control or influence or to see what has happened in the past or to see in future. यानी अक्सर जो विच डॉक्टर होता है ये वो बंदे होते हैं, यानी ये वो मजिशियंस होते हैं, ये वो जादूगर होते हैं, या वो लोग जिनको हम बिलीव करते हैं उनके पास सुपर पावर्स होते हैं, कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं, और उन स्पेशल पावर्स की वजह से वो हमें बता सकते हैं क्या हुआ है हमारे पास्ट की लाइफ में या क्या होने वाला है. Now I will be talking about the setting of the scene, setting of the story. ये जो स्टोरी है ये कहाँ सेट हुई है. You can look at the picture. आप पिक्चर को देख सकते हैं. ऊपर लिखा है दुर्गापुर और नीचे लिखा है कोलकाता. यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है मिरकैंको बाबू और उसके जो ड्राइवर है सुधीर, वो दोनों इस गाड़ी में वापस आ रहे हैं दुर्गापुर से. यानी वो कोलकाता के रहने वाले हैं मगर अभी वापस आ रहे हैं दुर्गापुर से. और इनको बुलाया गया था दुर्गापुर में, यानी जो मिरकैंको बाबू है जो एक फेमस राइटर है, ही वॉज इनवाइटेड बाय अ कल्चरल क्लब इन दुर्गापुर. एक कल्चरल क्लब ने दुर्गापुर में उनको बुलाया था टू फेलिसिटेट हिम, इसको फेलिसिटेट करने के लिए, इसको ऑनर करने के लिए, इसकी इज़्ज़त अफजाई करने के लिए उन्होंने बुलाया था. तो मगर अभी जो ये सेटिंग स्टोरी है अभी ये वापस आ रहा है, वहाँ से दुर्गापुर से वापस आ रहा है. और तकरीबन इन्होंने जो मनकर स्टेशन है, जब आप स्क्रीन पे वहाँ देख सकते हो ऊपर, तो मनकर स्टेशन जो है इन्होंने उसको पीछे छोड़ा है. अब वापस आ रहे हैं कोलकाता की तरह. और नियर पन्हागर, न कि पन्हागर, नियर पन्हागर जो है इनकी गाड़ी जो है द कार रैन आउट ऑफ पेट्रोल, और इनकी जो गाड़ी का जो पेट्रोल है वो ख़त्म होता है. एक सुनसान सड़क पे जो है उनकी गाड़ी जो है रुक जाती है बिकॉज देयर कार रैन आउट ऑफ पेट्रोल. उनकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होता है. और अभी टाइम होता है 3:30 बजे का. 3:30 इज़ द टाइम, यानी 3:30 टाइम है, वो टाइम है जब इनकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होता है. और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये दुर्गापुर से आए होते हैं और असल में कोलकाता के रहने वाले हैं. और थोड़ा सा इसमें आप जानने की कोशिश कर लीजिए, जो सनसेट का टाइम है वो 5 PM है, यानी 5 बजे का टाइम जो है सनसेट का होने वाला है. फर्स्ट द मिरकैंको बाबू, यानी जो मिरकैंको बाबू जो है उसने कोशिश की थी दुर्गापुर निकलने के लिए बाय ट्रेन, यानी उसका जो डिपार्चर है वो बाय ट्रेन होना चाहिए था. बट ही कुड नॉट गेट अ टिकट फॉर द ट्रेन. वो रिज़र्व नहीं कर पाया ट्रेन टिकट के लिए, वो रिज़र्व नहीं कर पाया टिकट ट्रेन के लिए. इसलिए जो है सुबह मॉर्निंग में आफ्टर हैविंग अ कप ऑफ टी, एक चाय का कप पीने के बाद वो निकला दुर्गापुर के लिए. बट अर्ली ही हैड वार्नड सुधीर, जो इसके ड्राइवर थे सुधीर, उसने उसको वार्न किया था कि जो पेट्रोल गॉज है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है. यानी जो गाड़ी का मीटर है, जो फ्यूल दिखाता है कि इसमें कितना फ्यूल है, इसमें कितना पेट्रोल है, जो पेट्रोल गॉज है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है. बट सुधीर पेड नो अटेंशन, सुधीर ने कोई ध्यान नहीं दिया. और सुधीर ने जब कोई ध्यान नहीं दिया तो सुधीर वहाँ से वापस आ रहा था, उसको लग रहा था इसमें अच्छा खासा पेट्रोल है, मगर उसमें ज़्यादा पेट्रोल नहीं था. बट जो ही वो यहाँ पहुँचे और यहाँ पर इनकी गाड़ी रुक गई, जो मिरकैंको बाबू का शक था कि पेट्रोल गॉज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, वो शक पूरा यकीन में बदल गया. हमने ऑलरेडी स्टोरी में कहा था जो मिरकैंको बाबू है, ही इज़ ऑफ अ गुड नेचर्ड, वो मिजाजन एक अच्छे इंसान थे. उसको मोस्टली गुस्सा नहीं आता था या वो गुस्सा नहीं निकालता था अपने नौकरों पे या ड्राइवर्स पे. मगर यहाँ थोड़ा उसको गुस्सा आया. उसने कहा कि सुधीर व्हाट हैव यू डन नाउ, अब तुमने क्या किया, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें. सुधीर ने कहा सर आई विल गो टू पन्हागर टू ब्रिंग द पेट्रोल, तो मैं जाऊँगा पन्हागर पेट्रोल लाने के लिए. तो मिरकैंको बाबू ने कहा तो वो कितना दूर है, पन्हागर कितना दूर है. उसने कहा वो 3 माइल्स अवे है. तो मिरकैंको बाबू थोड़ा हिसाब लगा रहे, इसका मतलब तुम 2.5 घंटे जो है तुम्हें लग जाएंगे. तो 2.5 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम है, जबकि सनसेट 5 बजे है, तो अभी 3:30 है. 3:30 को जब हम 2.5 घंटे प्लस करते हैं तो इसका मतलब 6 बजे. इसका मतलब जो है सुधीर वापस आएगा पन्हागर से 6 बजे और सनसेट तो 5 ही बजे है. तो थोड़ा उसको गुस्सा आया और अल्टीमेटली उसने पैसा दिया सुधीर को, कहा कि टेक दिस मनी एंड गो टू द पन्हागर एंड ब्रिंग द पेट्रोल वेरी क्विकली. एंड सुधीर टुक द मनी एंड लेफ्ट फॉर द पन्हागर. सुधीर ने पैसे लिए और चला गया पन्हागर के लिए. सुधीर चला पेट्रोल लेने के लिए पन्हागर, तो ये गाड़ी में बड़ा तंग हो रहा था. तो अल्टीमेटली जो है ये गाड़ी से बाहर निकला
और जो ये गाड़ी से बाहर निकला तो ही स्ट्रेच आउट हिज बॉडी, इसने बॉडी को पूरा स्ट्रेच आउट किया और फिर देखा पहले ईस्ट की तरफ। और याद रख लीजिए जब ये आ रहा था दुर्गापुर तो वो एक नॉर्थ साइड था और जा रहा था कोलकाता वो एक साउथ साइड था। और सड़क के दो तरह के जो साइड्स थे, एक था ईस्ट साइड और एक था वेस्ट साइड, यानी ईस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड। और यहाँ पर हम बात करेंगे सीन फर्स्ट की, यानी ईस्टर्न साइड जो सीन था, यानी जब ये गाड़ी से निकला ही स्ट्रेच आउट हिज बॉडी, तो जब इसने बॉडी को स्ट्रेच आउट किया ईस्ट की तरफ देखने लगा तो वहाँ से इसने पूरा जो है खेत खलियान देखा। और वहाँ क्या देखा अब क्लियरली देख लीजिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीन फर्स्ट। तो सीन फर्स्ट इज़ फ्रॉम द ईस्टर्न साइड। इसमें अक्सर जो है हमारे 12th में जो है इस पे अक्सर जो है क्वेश्चन आता है, इस सीन बेस पे जो अक्सर क्वेश्चंस होते हैं, तो इस चैप्टर से, इस स्टोरी से अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं, यानी डिस्क्राइब द सीन ऑन द वेस्टर्न और द ईस्टर्न साइड। तो अभी हम बात करेंगे ईस्टर्न साइड का जो सीन है वो कैसा था। तो जब मिर्केगो बाबू जो एक फेमस राइटर थे, जब उसकी नज़र पड़ती है ईस्टर्न साइड में और वो देखता है वहाँ पर माइल्स अपन माइल्स जो ज़मीन फैली है, माइल्स अपन माइल्स जो फील्ड्स है, वो जो ज़मीन है वो माइल्स अपन माइल्स जो है वो फैली हुई है। यू कैन लुक एट द पिक्चर। और ऐसी बैरल लैंड दिखती थी जैसे बंजर ज़मीन है। असल में बंजर ज़मीन नहीं थी, ये बंजर ज़मीन जैसी दिखती है, बैरल लैंड जैसी दिखती है। क्यों? बिकॉज क्रॉप्स हैव बीन रिमूव्ड ऑलरेडी, जो क्रॉप्स थे वो ऑलरेडी रिमूव किए गए हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्टोरी, इसकी जो सेटिंग है वो जनवरी में है, यानी वो विंटर में है। इसकी जो स्टोरी की सेटिंग जो है वो जनवरी मीन्स विंटर में है। और यहाँ पर उस वक्त से भी क्रॉप्स जो है वो रिमूव किए गए थे और दूर तक जो है सिर्फ जो ज़मीन थी माइल्स अपन माइल्स एक बंजर ज़मीन जैसी ज़मीन दिखती थी। ये पहला सीन है इसका। और उसके बाद इसको दूर दिखता है एक जगह, ही लुक्स एट अ हट, और उसे दूर जगह जो है हट दिखती है बिसाइड द टैमरिंड ट्री। टैमरिंड ट्री मतलब इमली का जो है दरख्त था। यानी इस ईस्टर्न साइड की जब हम बात करते हैं, पहले बंजर ज़मीन दिखती है और बंजर ज़मीन के बाद दूर जो वहाँ पर एक हट दिखता है, और जो हट है उसके बिसाइड, उसके साइड में जो खड़ा है वो टैमरिंड ट्री है, यानी इमली का जो दरख्त है। और इमली के दरख्त के बाद, यानी इस हट के बाद, यू कैन लुक एट द पिक्चर, देयर वाज अ रो ऑफ पाम ट्रीज, एक कतार थी पाम ट्रीज की। जो पाम ट्रीज थे, जो खजूर के दरख्त थे, उनकी कतार थी उसके बाद। और इस कतार के बाद था द डार्क डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद था डार्क डेंस फॉरेस्ट। हाँ, डार्क डेंस फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट जो था बड़ा गुंजान जो जंगल पीछे से था। यानी पहले क्या था, ज़मीन जो फैली हुई थी, उसके बाद दूर एक हट था और उसके साथ में टमरी ट्री था। टमरी ट्री के बाद एक रो ऑफ पाम ट्रीज था और रो ऑफ पाम ट्रीज के बाद डार्क डेंस फॉरेस्ट है। और ये सीन जो है ये उसको ग्रीट करता है, ये सीन जो है उसको दिखता है कहाँ से, ईस्टर्न साइड of the road. Now we will be talking about the western side, यानी how was the scene on the western side। जब राइटर ने पहले ईस्टर्न साइड देखा तो वहाँ से क्या देखा वो आपने भी सुना। अब देखते हैं कि वेस्टर्न साइड से उसने क्या देखा। वेस्टर्न साइड से भी सेम तकरीबन सेम था, उतना डिफरेंस नहीं था जितना है कि ईस्टर्न साइड में था। यहाँ पर भी वही था, माइल्स अपन माइल्स जो ज़मीन थी फैली हुई थी, एक बंजर से जैसी ज़मीन दिखती थी, एक बैरन लैंड दिखती थी क्योंकि क्रॉप्स रिमूव किए गए थे और ये ज़मीन जो है पूरी बंजर दिखती थी। मैंने इससे पहले भी रिपीट किया था, ये विंटर का मौसम था और ख़ासतौर मंथ जो था वो जनवरी था। मगर थोड़ी ही देर जो रोड था, रोड से थोड़ी ही वहाँ पर एक पॉन्ड था, दैट वाज ओनली 40 फीट अवे, सिर्फ 40 फीट दूर था, वहाँ पर एक पॉन्ड था। बट इट डिड नॉट हैव अ ग्रेट डील ऑफ वाटर, उसमें कुछ खास पानी नहीं था। इट हैड अ लेस वाटर, जो रोड से सिर्फ 40 फीट की दूरी पे था। किस साइड में? इट वाज ऑन द वेस्टर्न साइड। और हाँ, उसके बाद कुछ थॉर्नी बुशेस थी, कुछ झाड़ियाँ थी नियर टू द रोड, या रोड के थोड़ा नज़दीक में ही थी, यानी पॉन्ड से पहले और पॉन्ड के बाद कुछ थॉर्नस बुशेस थी। तो बाकी जो ज़मीन थी पूरी की पूरी जो फैली हुई थी। Now you can look at also the picture. There are the two huts far away. ये बहुत दूर थी, एक जगह थी two huts, but no sign of a habitation. मगर वहाँ ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई वहाँ पर रह रहा है, यानी ऐसी दो झोपड़पट्टी थी जहाँ ऐसा लग रहा था शायद इन दो झोपड़पट्टी में कोई रहने वाला नहीं है, यानी no sign of habitation, मगर ये बहुत दूर थे।
वेस्टर्न साइड में वहाँ पर होता है अ पैच ऑफ लैंड, ज़मीन का एक टुकड़ा होता है और उसमें कुछ समवट अ विंटर क्रॉप, कुछ कोई फसल जो है विंटर क्रॉप की कोई फसल जो है उगी है। और वहाँ पर हम देखते हैं स्कैरक्रो। हाँ, वहाँ पर पॉइंट जो है वो देखता है, वहाँ पर जो राइटर है वो देखता है स्कैरक्रो। राइटर का नाम मिरकैंको शेखर मुखोपाध्याय यानी मिरकैंको बाबू, शॉर्ट में हम इसको मिरकैंको बाबू कहते हैं। और वो वहाँ पर देखता है अ पैच ऑफ लैंड, जो ज़मीन का एक टुकड़ा है, और वहाँ पर वो देखता है एक स्कैरक्रो।